a distraught mother, unconsolable, nearly 2 weeks since her son was crushed to death after he was thrown off his bike. The only thing her mother wants, in fact, the only thing the mother wants today, instead of a lot of unanswered questions, is justice. As the police probe unfolds, more mysteries are arising instead of answers. The dashcam footage has now brought out further shocking details as to how a 23-year-old's life was snuffed out because a teenager behind the wheel of an SUV was high on reels. The accused, now emerging as an underage minor, was speeding as his sister was recording reels. The SUV, which narrowly missed a bus before colliding head-on with a biker, flinging him in the air, killing 23-year-old Sahil on spot. At the spot, police found 2 cars, including a taxi and a motorcycle, badly damaged. The injured taxi driver, Ajit Singh, was rushed to IGI hospital. His statement has been recorded. Doctors are waiting final medical opinion. Post-mortem report is also out and shows how multi-organs collapsed, killing Sahil at the site, damaging his brain, causing internal injuries that led to his death. There were injury to his spleen, his liver, and his other vital organs as well. Post-mortem also mentioned spot on death and death on spot. Accumulation of blood in the pleural cavity, blood in oesophagus and pharynx. But beyond the shocking post-mortem report, what's emerging is the conflicting reports of the age of SUV driver. The first FIR claims that he's 19 years old. However, the police officials now claim that he is still little over 17 years of age, which means that he is an unlicensed driver who was driving an SUV at a very high speed. The police now says his father has been charge-sheeted and will be held liable since the accused is a minor. But more questions, as I mentioned, are emerging than answers. Joining us on the show is Sahil's mother, Inam Khan. Madam, thank you very much for taking time out. I have to first begin by asking you, it's a tragedy that nobody should have to go through. It shouldn't happen to anyone. पर पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके बेटे की वहाँ पे ऑन स्पॉट मृत्यु हुई, आपका इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर क्या रवैया है, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों से? सिस्टम से, जुडिशरी से कि किसी और पेरेंट का बच्चा, इंतजार मत करो कि किसी और पेरेंट का बच्चा जाए, तब चीजों में सुधार हो। इनको पकड़ो, इनको प्लीज पकड़ो। इसके बाप ने भी बहुत सारे कांड किए होंगे जरूर, इसने बहुत सारे ऐसे क्राइम किए ही होंगे, तभी इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये अपने बच्चे को गाड़ी दे रहा है। आप ये भी फाइंड आउट करो, मेरे बच्चे के थ्रू हो सकता है आपको रियलिटी पता चले। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आप लड़ रही हैं जस्टिस के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आगे आपकी एक्शंस क्या रहेंगे? हाउ विल यू फाइट फॉर जस्टिस? आगे चलकर आप क्या करने वाली हैं? आप अपील कर रही हैं मीडिया को, आप बात कर रही हैं लोगों को, पुलिस मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस वक्त दे रहा है, कह रहा है कि वो बच्चा अंडर एज था, कभी कह रहा है नहीं था। आप कैसे लड़ेंगी जस्टिस के लिए? मैं जगह जगह जाके धक्के नहीं खा सकती, तो ये अब मीडिया का काम है, सिस्टम का काम है, जुडिशरी का काम है मुझे जस्टिस दिलाना। मैं सिस्टम से, पुलिस से, मीडिया से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन पब्लिक से, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज, नो चाइल्ड शुड गो आफ्टर माई चाइल्ड। अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए लड़ लो प्लीज। मेरा बच्चा तो चला गया, उसके लिए लड़ने के लिए मैं ही बच्ची हूँ, मैं लड़ूंगी। अपने बच्चों को बचा लो। दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज
मेरे मासूम बच्चे की बलि से अपने बच्चों को बचा लो प्लीज, अपने बच्चों को बचा लो। जी, काफ़ी सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही हैं। पुलिस अपना वर्जन बार बार चेंज कर रही है। ड्राइवर की क्या उम्र थी, क्या वो 17 साल के थे, क्या वो 19 साल के थे, इस पर आपका क्या कहना है? कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही अभी तक, क्या वो अंडर एज थे कि नहीं थे जिस वक्त वो ड्राइव कर रहे थे? मैम, मैं इस बारे में बता चुकी हूँ कि ये एविडेंसेस चेक करना पुलिस का काम है, मीडिया का काम है। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी एविडेंसेस निकालने के लिए, आप बताइए। जो पुलिस ने मेरे को बताया है कि उन्होंने एमसीडी से और जहाँ जहाँ से भी जो जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकाले हैं उसके आधार पे उन्होंने जो मुझे बताया है वही स्टेटमेंट मैंने आपको दी है। तो मैं तो कहीं नहीं गई हूँ कुछ लेने के लिए, जो मुझे पुलिस ने बताया मैं वही आपको बता रही हूँ। तो उसके आगे उसको फाइनली चेक करने के लिए तो आप लोग हैं, आपके बहुत लंबे हाथ हैं, आप लोग अपने लेवल पे चेक कीजिए, आप उसको सही दिशा दिखाइए कि वो क्या सही है क्या गलत है वो आप देखिए। मेरे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जहां मैं जा जाके धक्के खा खा के और चीजें निकालूं। मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है। मैं मीडिया के आगे और आप लोगों के आगे और सिस्टम के आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बस उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आप लोग जो बेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए वो कीजिए। नमकान जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको कॉन्फिडेंस है पुलिस में? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि प्रोब ढंग से होगी? 2 हफ्ते हो चुके हैं आपके बेटे को गए हुए, 2 हफ्तों में कोई क्लैरिटी निकल कर नहीं आई है। पुलिस अभी भी कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या आप अभी भी भरोसा रखती हैं सिस्टम पर, पुलिस पर? मैं बहुत कह चुकी हूँ, मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। मैं अपने बच्चे को पालने के लिए भी नहीं दबी थी, अब मैं उसको जस्टिस दिलाने के लिए भी नहीं दबूंगी। सिस्टम को खरीदने की जो इनको गलतफहमी है कि ये हर मोड़ पे मैम, वो आप लोग फाइंड आउट कीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा है, आप देखिए। मेरे बच्चे का अकाउंट रिपोर्ट कराया गया, बैन कराया गया, और भी बहुत चीजें हो रही हैं, और अभी तो चल ही रहा है, अभी तो बहुत कुछ आएगा सामने। तो अभी तो शुरुआत है, तो आप लोग देखिए। वो मैं आप लोगों को इसकी जिम्मेदारी देती हूँ। अगर आप लोग नमकान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू हैड अ लॉन्ग फाइट and I think the fight is going to be even longer from here on. Thank you very much for taking time out. Thank you for joining us on the show. Also joining me is my colleague Jeet Bhatti, who's been tracking these details very, very closely. Jeet, हमने इनामकान जी को सुना, 2 हफ्ते से अपनी बेटे के लिए गुहार लगा रही हैं। बेटा उनका वो खो चुकी हैं, बेटा मर चुका है, लेकिन पुलिस अभी भी ये असर्टन नहीं कर पा रही है कि जो ड्राइवर था वो अंडर एज था कि नहीं था। कितना मुश्किल है ये जान पाना आज की डेट में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही है। आपने साहिल की मां को सुना जिनका इकलौता बच्चा था, और एफआईआर हम देखें तो एफआईआर क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है तो उसमें जो एक्यूज है उसकी उम्र 19 साल बताई गई है। हालांकि बाद में जब पुलिस ने और पूछताछ की तो उसने बताया एक्यूज ने कि उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। यही वजह है कि उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया, और फिर वहां से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं, 10th का स्टूडेंट बताया जाता है, तो वहां से उसको जो है बेल मिल गई। लेकिन साहिल की मां यही पूछ रही है कि आखिर उसके बेटे का कसूर क्या था। हम इस वक्त उसी गाड़ी के साथ मौजूद हैं जिसमें वो एक्यूज जो था वो था। एक वीडियो भी हमारे सामने आई है जिसमें एक्यूज और उसकी बहन जो है वो इस गाड़ी को तेज रफ्तार चला रहे थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाजा आप इसी तरीके से लगाइए कि ये देखिए, आगे आप देखेंगे तो गाड़ी ओवर स्पीड थी। इस बात का साफ तौर पर प्रूफ ये है किस तरह से गाड़ी डैमेज हुई है। आप देखेंगे एयरबैग्स खुल चुके हैं और सामने शीशा टूटा हुआ है। अब आपको वो भी बाइक दिखाते हैं जिसपे साहिल अपने ऑफिस के लिए घर से निकला था। ये देखिए, ये साहिल की बाइक है। ये बाइक 3 टुकड़ों में हो गई है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेज रफ्तार से इसको टक्कर मारी गई थी कि जो बाइक है वो 3 पीसेस में यहां पर हो गई है। यामाहा की R15 जो बाइक है वो है जिसपे साहिल रोज अपने ऑफिस जाया करता था, और घटना वाले दिन भी 3 फरवरी को सुबह 11:38 के आसपास का वाकया बताया जाता है। तब इस घटना में उसकी मौत हुई है। और देखिए,
इतनी तेज थी गाड़ी कि ना सिर्फ इससे टकराई, उसके बाद ये देखिए ये टैक्सी जो है यहाँ पर, ये वहां पर पार्क्ड थी, इस पर भी जाकर के ये स्कॉर्पियो टकराई है। और इसमें एक अजीत ड्राइवर थे, वो इस मामले में घायल हैं। तो आप अंदाजा लगाइए टैक्सी की हालत क्या हो गई है। आगे से दिखाएं, आगे राजू पीछे से दिखाते हैं कि देखिए टैक्सी की भी हालत क्या हो गई है। तो सोचिए जिस साहिल को रौंदा है इस गाड़ी ने, उसकी क्या हालत हुई होगी, उस माँ पर उसको देखकर क्या हालत हो रही होगी। क्योंकि उनका ये भी कहना है, उनकी मदर से हमने बात की, कि जब वो एक्सीडेंट के तकरीबन 2 घंटे बाद स्पॉट पर पहुंची तब भी साहिल वहीं पर था, बुरी हालत में था, कपड़े फट चुके थे, बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया था। ये उसकी साहिल की जो मदर है उसका कहना है कि उनका ये भी कहना है कि उसे वक्त पर इलाज मिल जाता, ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद उसको बचाया जा सकता था। और उसके बाद उनका काफी लापरवाही हुई। इसमें पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रही है, कह रही कि जब अगर एफआईआर में उसकी उम्र 19 साल बताई गई थी तो जब आगे उसको फिर 17 साल का क्यों बताया जा रहा है। हालांकि इसमें जांच की जा रही है, बहुत सारे एविडेंस होते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है आपके, क्योंकि एग्जाम वो 10th के दे रहा है तो उसमें भी जो है एज लिखी जाती है। अगर फिर भी कोई विवाद हो तो उसके साइंटिफिक वेज भी हैं जिनसे उम्र पता ही लगा सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए आप किस तरीके से एक ओवर स्पीड, अगर वो नाबालिग भी था तो उस पेरेंट्स पर सवाल खड़े होते हैं कि कैसे आपने, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, उसको गाड़ी चलाना अलाउ किया। और हैरत की बात यह है कि जो वीडियो सामने आई है और जो साहिल उसकी मदर ने दी है कि उसकी जो सिस्टर थी जिसको एक्यूज को बताया जा रहा है नाबालिग है, वो भी गाड़ी में बैठी हुई थी और वो ओवर स्पीडिंग के दौरान जो है वीडियो बना रही थी। तो साहिल की मदर का ये आरोप है, ये एक्यूज कर रही हैं वो, कि क्या केवल वीडियो को बनाने के लिए ही ओवर स्पीड गाड़ी चलाई गई थी, जिसकी वजह से जो साहिल है, जो उनके जीवन का इकलौता सहारा था, 23 साल सिर्फ उनकी उम्र थी और सिंगल मदर थी, उसको पाला पोसा था और बहुत जल्दी वो मैनचेस्टर जाने वाला था, उसका कॉल लेटर वहां से आ गया था, उसके बड़े बड़े गोश्त थे, उसकी जान लेने वाले कौन, किसको आप इसके मामले में दोषी मानेंगे? वो नाबालिग जो गाड़ी चला रहा था, या उसकी बहन जो साथ में बैठी हुई थी, या वो पेरेंट्स वो गाड़ी जिनके नाम पे थी या जिन्होंने उसको अलाउ किया? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के साहिल की मां लगातार सवाल खड़े कर रही है। और देखिए 3 तारीख का ये वाकया है, 3 फरवरी का। अगर हम बात करें तो इस बीच जो है जब वो अपने बेटे के लास्ट रिचुअल्स जो हैं वो कर रही थी तो नाबालिग बताया जा रहा है, उसको बेल भी मिल गई और आज वो अपने बोर्ड के एग्जाम जो है वो दे रहा होगा, लेकिन साहिल नहीं लौटेगा। यही उसकी माँ का बड़ा दर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी सारी डिटेल्स जो बहुत difficult हैं to understand and digest is, of course, one is that not only he is a juvenile, that he is appearing for his board examinations, which makes it very easy to decipher what his age is. It's really a matter of proper verification to understand what the age of the driver was. Second is, of course, the fact that they were making reels, as has come out by the way of those videos doing the rounds on social media. वो reel बना रहे थे, perhaps they were distracted while driving. And third, that mother, when she reached the spot, hours later, the son was still lying there. इट गोज़ टू द पब्लिक एपैथी एंगल। जीत, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि जहाँ तक कि लॉ है इस मामले में काफ़ी क्लियर है। अगर ये जुवेनाइल हैं तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने अपियर होंगे, अगर ये एडल्ट है तो एडल्ट की तरह इन्हें ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। तो जो भी कार्रवाई है, जो भी एक्शन है, वो टाइमली लेना, ढंग से लेना और इस तरीके से लेना कि एक तरीके से कि एग्जाम्पल बने कि ऐसा जो भी यंग बच्चे हैं वो ऐसा दोबारा ना करें। ये ज़रूरी है, यही साहिल की माँ भी चाह रही है कि ऐसा हो, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए। आज आप कह रहे हैं कि उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, इस वाक़या को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, आज ड्राइवर को बेल मिल चुकी है, वो बाहर है। तो ये एक रिपीटेड साइकिल है जो साहिल की माँ का कहना है कि जिसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा खोया, किसी और का बेटा नहीं खोना चाहिए। That's a fair ask. But fact of the matter is the law is very very lax on the matter. If he is a minor, he will be treated like a minor, which means that he will be out before no time. But I think my concern is also to do with the fact that काफ़ी समय तक साहिल की बॉडी वहीं पर थी, वो लहूलुहान थे, वो घायल थे, पर किसी ने भी उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का काम नहीं किया। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो एक लहूलुहान व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएं। तो एक तरीके से एक पब्लिक एपैथी का एंगल भी निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, देखिए मदर का यही कहना है कि जो उनका बेटा है 11:38 के आसपास जो है ये वाकया हुआ है और 1:30 बजे वहां पहुंची थी, जो सीधे 2 घंटे का अंतर है। 11:57 में पुलिस को कॉल किया गया था,
इस बीच उनकी मदर का, या साहिल की मदर का ये आरोप है कि साहिल की जो बॉडी है, साहिल जो है घायल अवस्था में वहीं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर पड़ा रहा, उसको वहां से नहीं ले जाया गया। जब वो वहां पर पहुंच गई उसके 10 मिनट बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उनका ये भी कहना है कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था वहां पर भी ढंग से इलाज नहीं मिल रहा था। वो इस बात के लिए भी तैयार थी कि वो इस बात का जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद अपने ऊपर बियर कर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको ले जाया जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि उस वक्त उनके साथ कोई कॉपरेशन नहीं की गई, तो शायद एक चांस था उसके बचने का। दूसरी बात यह है कि ऐसा ना हो, वो यही कह रही हैं कि उनका साहिल वापस नहीं आएगा, वो जानती हैं, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो दो तरीके की है। एक तो साहिल को जस्टिस मिले, दूसरा किसी और माँ का जो साहिल है वो इस तरीके से दुर्घटना का शिकार ना हो, या यूं कहे किसी की लापरवाही की भेंट ना चढ़े। इसको लेकर के वो कह रही हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन देखिए यहाँ पर बात यही है कि जो नियम है, जो रूल्स है, वो ये कहते हैं कि अगर नाबालिग है और वो कार लेके जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो ऐसे मामले में साबित होता है कि नेग्लिजेंस पेरेंट्स का है तो उसमें 3 इयर्स तक का जो है मैक्सिमम सजा का प्राविधान है। लेकिन अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि नहीं, उनकी जानकारी में नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि नाबालिग जो है गाड़ी चलाए, पूरा प्रिकॉशन लिया गया था, तो इस मामले में उनको राहत भी मिल सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो माँ है वो बार बार यही कह रही है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले और इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर में किसी और साहिल के साथ ऐसा ना हो। Jitendra Bharti, thank you very much for all those details. We do have some reactions on the story. One of the drivers of a nearby car who was injured in that accident has also spoken to the media. Listen into what he had to say. ये मैं उधर साइड में खड़ा था, ये लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। और फिर कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला गाड़ी से और उन्होंने हॉस्पिटल भिजवाया। ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, इसमें इलाज मैं 12:15 बजे के करीब पहुंचा था। फिर उन्होंने एक्सरे ये कराए, उसके बाद टाँके वगैरह लगाए और मेरे को 4 बजे के करीब छुट्टी दे दी थी। सरकार से भी राहत मिली अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का।